dekhe around pulses and chicken. And this is going to be now a regular agenda item in the Economic Coordination Committee. Because if you look at these two commodities, या food items, तो internationally ये prices नीचे आई हैं, petroleum prices generally 6 महीने में नीचे आई हैं, transportation costs नीचे आई हैं. How can we have 50-60% increase in the prices of pulses and 15% increase in the price of chicken? We will simply not allow middlemen arbitrage, ताकि ये जो relief है जो common man के पास जानी है, इसको जो है हम इसको पाया तकमील तक ना पहुंचा सके. तो इसमें this will be a standard agenda item in the ECC, and with my fellow Minister of Planning, Mr. Hassan Iqbal, who runs जो pricing committees हैं उनके साथ मिलकर will ensure कि जो inflation नीचे आई है, and alhamdulillah from 38% to now single digits. तो ये जो बात होती है कि जी इसका common man को क्या फ़ायदा हो रहा है, we'll ensure that this absolute gets passed on to the person on ground. During annual meetings in Washington with all the stakeholders, and these were multilateral institutions, our development partners, these were my counterparts, finance ministers from various countries, rating agencies, institutional investors. There were two consistent messages. One was their appreciation of rebuilding the trust and credibility in terms of the track record that is now coming through over the last 12 to 14 months. And even more importantly, the message was stay the course. And the same chorus and messaging is coming from all of you in the country, that there is no room for complacency. And I totally agree with both of these messaging, because ये जो messaging आ रही है, this is around our structural reforms, whether it's on the taxation side, whether it's our fixing our energy equation, whether it's the SOE reforms and the privatization agenda, and indeed the public finances. कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है और फेडरल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसकी राइट साइजिंग होनी चाहिए, उसमें पेंशन रिफॉर्म्स आनी चाहिए, so that whatever taxation is coming through is being appropriately spent. Now, this जो messaging है आपकी, that's why I say it's loud and clear for two reasons. One, our past record is not stellar. हम भटक जाते हैं. We go off track. The moment we get onto track, there are many pressures which come through and we go off track. Number one. Number two, there is no single silver bullet. ये जितनी मैंने reforms की बात की है, और मैं बार-बार ये बात कहता हूँ कि the what and why have been known to the country not for years but for decades. It's only the how part of it, and that will require a very holistic approach. कोई ये silver bullet नहीं है. उसमें starting with people and therefore governance, simplifying processes and technology. Abhi Chairman Vion talked about digitalization and how this is going to help, and of course, you know, this is going to help in terms of digital Pakistan, in terms of where we're going to go. But in all our government institutions, this is so important in terms of end-to-end digitalization and the role of technology in bringing transparency, in stemming leakages and corruption, by reducing the human intervention, and ultimately improved client service. Now, undoubtedly, there will be bumps on the road. अगर इतना ही आसान होता तो ये कुछ सालों और डेकेड में हो गया होता. तो इसलिए ये hiccups आएंगे और इसमें we have to remain steadfast, और जो आपकी तरफ से सब कुछ messages वापस आ रहे हैं, international community से, हमारे partner से वापस आ रहे हैं, stay the course. We absolutely intend to stay the course.
Now, we need to do all of this for the short to medium term ताकि इस economy को हम turn around कर सकें. And as I said, the macroeconomic stability is step one in that direction before we start talking about sustainable growth. Now, how do we get there? And that's where we come to the topic at hand, what matters now? What matters now? And that's where there's a tactical part of it, and there is a strategic part to it. And the speakers before me have already touched on some of the strategic elements around that. As far as the tactical aspect is concerned, once we on this roadmap of structural reforms, we have to have a very clear road to market. And that road to market is कि हम number one, fundamentally DNA economy की change करें towards export orientation. Import substitution, जो हमने industry को मराद दी, उनको protection दी for the longest time without sunset clauses, that cannot continue going forward, right? Because क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं. On one side, the government has to come in to help vis-a-vis taxation, vis-a-vis competitive interest rates, and of course the overall ease of doing business. But at the same time, the private sector, which has to lead the country, I've been saying that over the last 6 months, and I've been saying that in my private sector role, the private sector has to lead the country. But the private sector also has to improve its productivity. It takes two. It takes two. So when we are talking about changing the DNA of the economy, we need to do what we need to do in terms of the government, जैसे अभी असफर ने कहा, policy framework, policy continuity. And then we should get the hell out of this whole thing so that the private sector can take this forward. Lekin the private sector has to also do what they need to do in terms of increasing their productivity. The second thing is FDI. And of course, FDI के दो components हैं. It was just mentioned, Excellency, yourself as well, and Asfa mentioned that as well. The investment appetite, these have been very publicly stated. And so I don't want to get into those numbers. But the ball is back in our court in terms of coming up with investable, bankable projects where folks can come in, do equity investments, and get board seats. That's sustainable for our foreign investors, that's sustainable for our local investors, and that's the only sustainable way forward for this country. That's one aspect of it. And the second aspect of it is when we get into FDI, we have to focus on that FDI going forward, which produces exportable surplus. Otherwise, the currency mismatch is something which we have been facing with in the yesteryears. We are still facing that issue, and going forward, we have to stem this by really focusing on that FDI, which leads to exportable surplus. And the third thing is, of course, accessing the international capital markets so that we can get on to a sustainable growth path. Now, the second part of it, and as for you sort of touched on some of those matters which are so critical in terms of what matters now. And that, I've mentioned it previously, I'll again repeat it, are what I would call existential issues for the country. Population growth. At 2.55%, this is not a ticking bomb, this is a bomb which has exploded. And therefore, there are two issues which are related to that, directly related to the population growth. Number one, child stunting. 40% of children under 5 are suffering from child stunting. Now, in the yesteryears, we have made interventions, and these have been primarily interventions on the nutritional side. We need to take a very holistic approach in terms of health, of course, nutrition, family planning, safe water, sanitation, and the hygiene agenda. And the second thing, again associated with population, is reducing learning poverty, especially for girls, young women, who constitute majority of out-of-school children. ये दोनों चीज़ें directly linked हैं with the first issue. And then the second big issue is
the climate. Increasing climate resilience against floods and water, agri-climate nexus. 2022 was a wake-up call for the country. And the second one is decarbonizing the environment, which is around air pollution. We see Lahore in the news every single day, so I don't need to speak in terms of the importance of attending to this as of yesterday. Now, ladies and gentlemen, from my perspective, we have no choice. You have no choice. We cannot move sequentially. We cannot say कि पहले इकोनॉमिक टर्न अराउंड कर लें, ये IMF का प्रोग्राम कंप्लीट कर लें और ये आजकल सब खबरों की जीनत है कि कल टैक्स क्या है, परसों का इंटरेस्ट रेट क्या है, और ये नैरेटिव कहाँ है? Where is this narrative around the existential issues? So the economic reforms are absolutely critical. We are absolutely committed because without this, the country cannot move forward. But having said that, ये जो existential issues हैं, by the time we get to be 100 when we are 2047, if we don't attend these now, we will have a huge issue. ये हम population growth की बात कर रहे हैं, आज 240 million है, ये 400 million हो जाएगा, whatever. On one side, okay, that's fine, that's the size of the market. But if we are having all of these issues today at 240 million, can you imagine what will happen when this country has a population of 400 million plus? So therefore, taking care of human capital development and climate resilience have to go hand in hand. Now, जैसे अभी असफर ने जिक्र किया, I'm sure, जो जैसे मैंने economic और structural reforms की बात की है, I'm sure we are all in wild agreement in terms of the what and why part of it. It's always the how part of it. And there we are very grateful to our development partners who will help us not only in terms of financing, but also capacity building in these areas, both in the government and more importantly in the private sector. इस context में जो अभी discussions हुई हैं in Washington and earlier when I was there for the spring meetings, I'm very grateful to President Ajay Banga on the World Bank side because उनके साथ यही बात हुई है कि ये पहला मुल्क होगा जो country partnership framework की तरफ जा रहा है अगले 10 साल के लिए. Because these issues which I've just mentioned are not about tomorrow, not about next week, not about next month, not about the fund program, not about the next 3 years. This is at least a decade. और ये सारी चीज़ें हम incorporate कर रहे हैं in that country partnership framework. As I said, if we are not, we are certainly going to be one of the first countries to agree on this partnership framework, and it's not only with the bank, but also with ADB, and yesterday I had meetings with AIB and other development partners. They're all there to help, support, assist us. लेकिन जिस तरह हमें FDI में investable, bankable projects लेकर आने हैं, इसी तरह अपनी तरफ हमने ये capacity build करनी है कि इन projects को हम आगे कैसे लेकर जाएं, and therefore the capacity building part of it is going to be very important. The last thing I just want to mention is that while we work with our development partners, my plea to all of the local and the foreign investors is please come and partner with us and invest in these areas which matter and which matter now to break away from the past patterns and build the foundation to sustain future growth. With that, ladies and gentlemen, thank you for the invitation and giving me a very patient hearing. Thank you. कारोबार में सहूलत के लिए रुकावटों को दूर किया जा रहा है, रुपए की कदर मुस्तहकम और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है, पॉलिसी रेट में बतदरीज कमी आ रही है, आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है, दोस्त ममालिक पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रहे हैं, हुकूमती इक़दामात से बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है, तेज़ दर तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी का किरदार अहम है, करंट अकाउंट खसारे में कमी आ रही है, जबकि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है, तरसीलात ज़र बढ़ी हैं, रुपए की कदर भी मुस्तहकम हुई है, पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी आई है, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है और महंगाई में भी नुमायां कमी हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे।
आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है, महंगाई में नुमायाँ कमी हुई है, करंट अकाउंट खसारे में कमी, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़र के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत की बेहतर माशी पॉलिसियों की बदौलत तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ है, जिसकी बदौलत मजमूई तौर पर रुपये की कदर में भी इस्तेहकाम आया है। पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी आई है, जिससे माशी तौर पर अशारिया मज़ीद बेहतरी की जानिब गामज़न होंगे। वज़ीर ख़जाना का इस तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि कारोबार में सहूलतों के लिए रुकावटों को दूर किया जा रहा है, रुपये की कदर मुस्तहकम और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है, आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। गवर्नमेंट की रिसर्च पे फोकस ना करें। अगर गवर्नमेंट की रिसर्च इतनी हो रही होती तो आज हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और यील्ड है वो कहीं की कहीं चली गई होती। कितने इंस्टीट्यूट्स हैं इस मुल्क में। सो काइंडली टेक प्राइवेट सेक्टर, काइंडली टेक दैट लीड, राइट। ये जो अभी आपने एआई की बात की है इन एफआईआई इन रियाद, you know, AI was the main topic in Riyadh, and of course you heard the discussion from the SoftBank CEO and owner, because he talks about ASI, right, artificial super intelligence. And if you've heard his interview, I'm not going to repeat that. That's where we need to go. But it's coming from the private sector. आप भूल जाएं और मत रिलाई करें आप गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिसर्च पे। आप खुद इसको आगे लेकर चलिए, एंड वी विल प्रोवाइड यू द नेसेसरी सपोर्ट एज वी गो फॉरवर्ड इंशाल्लाह। जी प्लीज। जी आफ्टर दैट जी इधर माइक दीजिए जी। Amina Sayed, and I've been publishing school textbooks for 30 years. You just mentioned that the government should not interfere with the private sector. We have not been allowed to supply textbooks to any government school across Pakistan. They're provided by the Sindh Textbook Board. And in Punjab, for the last 2 years, every textbook developed by the private sector has to be approved by the Punjab Curriculum Board. And they, in the process of approval, they mutilate these textbooks. And you mentioned that education and human development is so important. How can our children be educated if they are using low-quality textbooks and high-quality textbooks produced by the private sector, world-class textbooks, are not allowed into government schools? Right. It's a fair question, Ji. I don't have a ready answer for that. I wasn't aware of this. As far as you know, education is now after the 18th Amendment is very much a provincial subject. Having said that, there's something which we'll take it up, we'll take it away. कि इसमें क्या issues हैं और ये क्यों नहीं accept हो रही, and what are the reasons for that. Unfortunately, I do not have a ready answer because I'm not up to speed on this particular issue, but I will take it away and pick it up with the Education Minister. Thank you. One last question, please. One last question. अली खिजर साहब, आपको कौन सी चीज़ है जिसका आपको नहीं पता जो आप मेरे से पूछने लगे हैं? लेकिन आप पूछ लीजिए फिर भी जनाब। सर, आप बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। जी जी। एक फ्यूचर समिट है, आप प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं और आप क्रेडिट ले रहे हैं पल्सेस और चिकन की प्राइसेस पे से आने का। थोड़ा समझाते हैं क्यों है? नहीं देखिए, मैं तो एक चीज़ आपके साथ पूरा एग्री करता हूँ कि जिस चीज़ में से गवर्नमेंट निकल जाए उसी में बेहतरी है। क्योंकि देखिए, आप क्रॉप्स की बात करते हैं, आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं, and let's pick up. I mean, let's be very specific about it, right? I mean, there are two crops, which is rice and maize. कभी आपने सुना है सप्लाई डिमांड स्कैंडल्स, इंपोर्ट क्या कौन करेगा, एक्सपोर्ट क्या करेगा?
राइस पिछले साल भी $4 बिलियन की तरफ एक्सपोर्ट हुई, और मेरी अभी गवर्नर साहब से बात हो रही थी लास्ट वीक, and his estimates based on whatever he's sensing, it will be at least a similar amount this year as well, right? ना किसी को पता चलता है कि आपने कब ग्रो किया, क्या एकरेज हुई और ये एक्सपोर्ट हो गई. 2 areas, wheat and sugar, and I deal with that in the ECC every single month, and respective governments have been dealing with that. तो मेरी रिक्वेस्ट मैंने की है मिनिस्टर ऑफ फूड से, बिकॉज देखें ये everyone has to think through their own avenues, and they have to come up with the policy thing. From my side, इन चीज़ों से भी जितना गवर्नमेंट निकल जाए, पंजाब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये वीट की सपोर्ट प्राइस ख़त्म करनी चाहिए. इट्स एब्सोल्युटली द राइट थिंग टू डू, एब्सोल्युटली द राइट थिंग टू डू. और इनको आप जो है सप्लाई डिमांड और मार्केट पे जाने दें, और इंशाल्लाह ये भी क्रॉप्स ऐसे ही चलेंगी. और बाकी जो आपने जिक्र किया, देखिए एक रेगुलेटरी फंक्शन ज़रूर रहता है गवर्नमेंट में. एक जिस तरह हेल्थ में है, ड्रैप स्टिल नीड्स टू बी विद द गवर्नमेंट. देयर हैज़ टू बी अ रेगुलेटरी एलिमेंट टू इट, बट अदरवाइज हमारी इंटरवेंशन इन सप्लाई डिमांड शुड नॉट बी देयर. आई फुली एग्री विद यू. जी लास्ट क्वेश्चन कर लें जी आमिर इब्राहिम साहब से. जी You've been doing a lot of work around transformations, working in the government. I was just wondering whether you're happy with the progress in this transformation. If not, what can be done better? And especially, what can private sector and corporate sector do to facilitate and coordinate with you to accelerate in this space? Yeah. So Amir, you have been very instrumental. Chairman, you don't know it, but the Prime Minister wanted him in the government as well. He somehow managed to stay away. I could not manage that. So we are very grateful for Amir and Jazz and overall young group support that we are getting. But to answer your question, listen, I think कि जहाँ private sector हमें help कर सकता है, especially the area where you are helping and supporting us, and you have been on the task force as well in terms of end-to-end digitalization of FBR. And I've already said why we want to do end-to-end digitalization of FBR. मेरी सिर्फ एक जो request है from the private sector, that while we are trying to do what we are trying to do in terms of simplifying processes, in terms of trying to reduce the human intervention, आप भी हमारी मदद करें, because ये not सालों का नहीं, ये decades की बात है. Speed money, facilitation money, right? Allow us to do what we are doing, and you kindly stay firm, even if you are advised by the people who have been dealing with the tax authority कि जी ये तो हमें करना पड़ेगा, कई वज़ीर आते हैं, कई वज़ीर चले जाते हैं, हमें तो इन्हीं के साथ डील करना है, right? Stop this. Try us out, right? Because मैंने जब पहले कहा है, it takes two to tango in terms of the productivity, but also from the private sector, 2 महीने, 3 महीने, साल हमें दें. Stand firm. Stand firm. Because when you are documenting an economy, which is, our last year, our tax revenues were 9.4 trillion, and 9 trillion rupees cash in circulation. When you start going to move this cash in towards document, of course there's going to be resistance. Of course there's going to be pushback. But we are very clear that our hand has been forced, both internally and externally. जो मुझे लोग मेरे से बात करते हैं, इस दफ़ा क्यों होगा? इस दफ़ा इसलिए ही होगा कि अगर ये टैक्स रेवेन्यूज़ हम इस दफ़ा ना बढ़ा सके, क्या चॉइस है हमारे पास? Going back to the same for more? Salaried class and manufacturing sector, right? It's not sustainable anymore. और वो लोग कहते हैं कि जी आप कहते हैं हम empathetic हैं, इसलिए भी empathetic हूँ because before October I paid my taxes as well as a salaried class person before I went into the government. So it's not sustainable, and especially on the external side as well, where it's now all has to be investment led. The rollouts are gone. Therefore, we cannot continue to kick can down the road. So once again, Asfar, thank you very much for the kind invitation. Would have loved to stay here longer, but Islamabad beckons me, so I have to go back. But a real pleasure, and I wish you a very successful conference. Thank you. पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है. महंगाई में नुमाया कमी हुई है. करंट अकाउंट खसारे में
कमी और साथ साथ ज़र मुबादला में भी इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़र इजाफा है और रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। बिफोर दी कॉन्फ्रेंस हमें उनके साथ डिस्कस कर लेना चाहिए, कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, और जब वहां से एक यूनाइटेड मैसेज जाएगा पूरी उम्मा का, इस्लामिक वर्ल्ड का, तो दैट विल हैव सम इफेक्ट। वो तो चाहेंगे कि सारे मुल्क बायलैटरली या इंडिविजुअली अपना कोई हमारे पास अप्रोच करें या हम तक पहुंचे, ताकि इस जेनोसाइड को रोकने में जो टेसिट अप्रूवल उस जेनोसाइड की इजराइल को मिली हुई है और ग्रेटर इजराइल के नक्शे के अचीवमेंट के लिए ये सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जब इंडिविजुअली कंट्रीज जाएंगी तो वो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो वट एवर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, अगर उसमें कोई आप सैंक्शंस की बात कर सकते हैं, आप जो भी एजेंडा है वहां पे हमें यूनाइटेड एजेंडे के साथ जाना चाहिए। इसकी अहमियत इसलिए भी है कि ये लास्ट एफर्ट्स है। देखिए अभी इलेक्शंस हो रहे हैं यूनाइटेड स्टेट में, सून देयर गोइंग टू बी अ न्यू लीडरशिप इन यूनाइटेड स्टेट। कैमला हैरिस का तो स्टेटमेंट जो करंट है वो यही है कि अगर वो सदर बन जाएंगी तो वो गजा में जंग बंदी करवाएंगी। ये देखिए, ये तो अभी एक उनका क्लेम है, जो एक्शंस हैं वो दोज विल स्पीक लाउडर देन व्हाटएवर दे आर क्लेमिंग। जंग बंदी की, सॉल्यूशंस की, टू स्टेट सॉल्यूशन की बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से किलिंग स्प्री की इजाजत मिली हुई है वहां पे जेनोसाइड की, अब देखें गाजा आज गाजा नहीं रहा, 80 साल 70 से 80 साल लगेंगे इस गाजा को अपनी शेप पकड़ने में। अगर गाजा वाला ही मॉडल चला गया वेस्ट बैंक में, वेस्ट बैंक से ये ग्रेटर इजराइल वाला जो प्रोजेक्ट है, अगर उसकी तरफ ये सारा बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वेयर वी आर एंडिंग अप। तो एक कलेक्टिव आवाज जब चली जाएगी तो नई लीडरशिप को, या कैमला भी एक नई लीडरशिप होंगी, क्योंकि एज अ वाइस प्रेसिडेंट शायद वो अपनी इतना एक्सप्रेस ना कर सकी हो, वो अपनी गवर्नमेंट के साथ ही हैं, तो एज अ प्रेसिडेंट उनको पता होना चाहिए कि दिस इज द कलेक्टिव मूड, दिस इज द कलेक्टिव विजडम ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, वो क्या चाहते हैं हमसे। फिर उनके जो रिस्पॉन्स आएंगे उसके ऊपर हम जितनी कलेक्टिव पॉलिसीज के साथ जाएंगे उतना उसकी इफेक्टिवनेस होगी और इंसानियत के लिए बहुत बड़ी खिदमत होगी, और स्पेशली फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। अब जब वहां पे हम जाएंगे तो यही मॉडल देखें कश्मीर में हो रहा है, तो कश्मीर की भी हमारी जो आवाज़ है, उन लोगों को जो हमारे इवन इस्लामिक वर्ल्ड है उनको भी उसका पेन अब ज्यादा फील होगा, क्योंकि उनको उनके पड़ोस में, उनके रीजन में एक चीज हो रही है। तो आई थिंक ये हमें इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। लेकिन मोहम्मद अली साहब, मसला तो यही है ना कि ये इशू आज से तो उठाया नहीं जा रहा। गजा में जो है जंग को 1 साल होने वाले हैं, कश्मीर में हम देख रहे हैं इतने अरसे से मसला चल रहा है, उधर भारत जो है वो और इजराइल दोनों अक़वामी क़वानीन की, बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ा रहा है, जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, दुनिया सब देख रही है, मगर अक़वाम आलम इस पर बेहिसी इख्तियार किए हुए। तो ये जो कलेक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं जाहिद साहब, ये कितनी करामत साबित होगी इस वक्त? देखिए, आपका बहुत अहम सवाल है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो आलमी निज़ाम मुरतब किया था, दूसरी जंग अजीम की फाते अक़वाम ने, अक़वाम मुत्तहिदा उसका सबसे मरकजी और अहम तरीन सतून है, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम तनाज़ात को पुरअमन अंदाज में उनका तस्सिया करे, अमन सलामती को इंश्योर करे, तरक्की को इंश्योर करे। लेकिन बदकिस्मती से ये एक हकीकत है कि अक़वाम आलम की अक्सरियत, खुसूसन जो ग्लोबल साउथ या तरक्की पजीर दुनिया है, उसकी तवक्कुआत पे अक़वाम मुत्तहिदा पूरा नहीं उतरा है। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो गजा का कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है इफेक्टिवनेस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर, जो अक़वाम आलम की तवक्कुआत हैं कश्मीर के हवाले से, गजा के हवाले से। तो यकीनी तौर पे वो कौमें एक जानिब, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, जो कि खुले बंदों अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, आलमी क़वानीन की और उसकी करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रही हैं, और दूसरी जानिब वो उसकी सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट रुकन भी बनना चाहती हैं। जी जाहिद साहब, ये वही सवाल आ जाता है बार बार कि चलें जी हम यूनाइटेड नेशन के पास, यूनाइटेड नेशन में तो पहले ही हक़ खुद इरादियत के चार्टर के हवाले से रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, और चाहे वो कश्मीर का मसला हो जाए, चाहे वो फ़लस्तीन का, गजा का मसला हो जाए, वो तो किरदार निभा नहीं रही। तो अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए,
यूनाइटेड नेशन से जैसे जब बात चल रही है तो यूनाइटेड नेशन अगर अपनी वक़्त खो रहा है तो उसके अल्टरनेटिव जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इकोनॉमिक फोरम्स हैं, सिक्योरिटी फोरम्स हैं, उनके बीच में देखिए अभी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करना शुरू कर दिया है। अब एससीओ में देखें चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान उसका मेंबर है, सऊदी अरेबिया भी उसमें आता है उसको डिस्कस करने के लिए और ऑब्जर्वर के तौर पे, मिडिल ईस्ट की और कंट्रीज शामिल है। अब इन ऑर्गेनाइजेशंस में देखिए अभी सेक्रेटरी जनरल के साथ जो ट्रीटमेंट हुई है या इजराइल ने जो उनके ऊपर स्टांस लिया है, या यूनाइटेड नेशन के जिस तरह भी अनवरा की बात हो रही थी, जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज के साथ जो डील करते हैं इदारे हैं उनके ऊपर, तो इजराइल तो उस यूनाइटेड नेशन को मान नहीं रहा और अनफॉर्चुनेटली उसको टेसिट अप्रूवल भी हुई है उन फोर्सेस की तरफ से जो उसको जिन्होंने उसमें जान डालनी नहीं थी। तो पाकिस्तान को चाहिए या मुस्लिम उम्मा को चाहिए कि इसका ये मतलब नहीं है, देखिए ना, आपकी अगर ओआईसी आज इफेक्टिव होती, उसकी कोई वॉइस होती, उसका देखे इकोनॉमिक फील्ड में जो जहाँ पे इन कंट्रीज को चैलेंजेस आते हैं उनके सॉल्यूशंस अगर वहाँ पर होते तो आज हमें शायद यूनाइटेड नेशन पे इतना डिपेंडेंट ना होना पड़ता। और अगर यूनाइटेड नेशन की वीकनेस के साथ साथ अब हम भी अपने आप को ऐसे जैसे गैर मौसर से हो गए, तो एससीओज हैं, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ओआईसी है, इसके बीच में हमें एफर्ट करनी होगी। और ये नजर आ रहा है, ये एफर्ट अब हमें नजर आ रही है, अब एफर्ट नजर आ रही है, अब इसको परसू करने की जरूरत है। अभी ये नहीं है कि हमने एफर्ट करके इसको एंड स्टेट तक हमने इसको करना है। ह्यूमैनिटेरियन से आप शुरू हो गए, आप देखें हम इकोनॉमिकली अब कैसे इसको एड्रेस कर सकते हैं, इसको हम मिलिटरीली कैसे एड्रेस कर सकते हैं। मैं अभी देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है। अब इब्राहिम अकॉर्ड हुआ है, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया अगर उसका हिस्सा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदीया, तो अब इस वक्त उनकी लीडरशिप को चाहिए कि वो उस अकॉर्ड से अगर वो पीस के लिए या सॉल्यूशन के लिए जो भी एफर्ट वहां से हो रही है उसको सामने लाएं, उसके ऊपर वो अपनी शराइत रखें या बातचीत करें कि जी हम इस वजह से इस अकॉर्ड के बीच में आए हैं। अमन को जब आप मौका दे रहे हैं और आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो फिर यू हैव टू गो टू अनदर लेडर ऑफ द डिस्कशन और पॉलिसी डोमेन में, तो आपने थोड़ी सी उसकी स्टेक्स आपको हाई करनी पड़ेगी। इन कंट्रीज के ऊपर ये जोर देने की है कि जी आपने अमन को मौका दिया है, आप अब इसको जरा दुनिया को दिखाएं कि आया वो इजराइल इसको रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो आप हमारी आवाज में और तवाना आवाज बनाने के लिए इसके लिए अपना किरदार अदा करें। ठीक, तो मोहम्मद अली साहब अब जरा हम पाक ईरान के हवाले से बात कर लेते हैं, जो उनके म्यूचुअल जो इश्यूज हैं, जॉइंट इश्यूज हैं। जिस तरह आपने बात की कि टेररिज्म दोनों मुल्क का जो है वो एक मसला, आज इसाक डार साहब ने भी इस हवाले से बात की कि दोनों को ये चैलेंज है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि जिस तरह हम बॉर्डर पर देख रहे हैं कि दोनों ममालिक की जो है वो एक स्ट्रेटजिकल ताउन हमें नज़र आता है, लेकिन साथ साथ जिस तरह स्मगलिंग के लिए क्रैकडाउन किया जा रहा है या बॉर्डर ट्रेड के हवाले से जो मुश्तरका मुफादात की बात की गई है इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कितना ज़रूरी है इस वक्त? देखिए, अभी जन साहब ने एक बड़ी अहम बात की कि मैं समझता हूँ कि इस खित्ते के जो हालात हैं ये पाकिस्तान और ईरान को एक दूसरे के करीब मुख्तलिफ शोबों में आने के मौके पर फराहम करते हैं, और दहशतगर्दी मैं समझता हूँ एक सबसे बड़ा कॉमन चैलेंज है। और अभी जिस तरह अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी दहशतगर्द में उनकी सरजमीन इस्तेमाल कर रही है, आपके इल्म में होगा कि चंद दिन कबल एक बहुत बड़ी झड़प हुई ईरान और अफगान तालिबान के दरमियान बॉर्डर के ऊपर, उसमें 17-18 के करीब हलाकतें हुई। तो इससे ये साबित होता है कि बतदरीज अफगानिस्तान जो है वो ईरान के लिए भी एक दर्दसर बनता जा रहा है, उनकी सलामती को खतरा बन रहा है। तो हमें चाहिए कि एक रीजनल अप्रोच के तहत जो उसके नेबर्स हैं वो मिल के ईरान के साथ, जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं और चीन के साथ हम अफगानिस्तान पे जोर डालें कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और दहशतगर्दी के खात्मे में अपना रोल प्ले करे, ताकि न सिर्फ ये खित्ता बल्कि अफगानिस्तान भी तरक्की और खुशहाली की मंजिलें तय कर सके। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए ईरान के साथ सिर्फ बायलैटरल मामला नहीं है, और भी जो कई फोरम्स हैं, OIC है, उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह ब्रिक्स है या SCO है, इसमें भी हम दोनों मिलके मुख्तलिफ इलाकाई जो इकोनॉमिक और एनर्जी और सिक्योरिटी के मामलात हैं उसको हम जो है आगे बढ़ाते रहे हैं। लेकिन एक बात मैं और इस पे वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान 1979 का जो ईरान का इंकलाब था, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर ईरान की अवाम और हुकूमत का इतना एतमाद रहा है कि पाकिस्तान का जो सफारत खाना अमेरिका में है वो
जब 30 साल अमेरिका की में है सर ईरान हमने का सफारतखाना बंद हो सिफारतदारी गया, ईरान की। तो वो तमाम तर जो वीजे दिए जाते हैं ईरान आने के लिए अमेरिका से शहरियों को, वो पाकिस्तान का सिफारतखाना ईरान के लिए ये सिफारती सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान बैक वक्त अमेरिका और ईरान के हुकूमत के दरमियान एक पुरअमन ब्रिज का रोल अदा करता रहा है और करता रहेगा। और हम तवक्को करते हैं कि मशरिक वुस्ता के भी जो मामलात हैं और देरीना मसाइल हैं, उनको बातचीत के जरिए से, उनको अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के जरिए, आलमी कवानीन के जरिए से जो है हल किया जाए। और जो रियासत खुसूसन इसराइल जो इतनी ज्यादा जाहिरियत और इंसान दुश्मनी का सबूत दे रही है, उसके ऊपर दबाव डाला जाए, उसके ऊपर इक्तिसादी पाबंदियां लगाई जाएं। और मैं समझता हूं कम अज कम ये जरूरी बात है कि वो मुसलमान ममालिक जिनके सिफारती, तिजारती, माशी ताल्लुकात हैं इसराइल से, कम अज कम उनसे ये एक्सपेक्टेशन है कि जनाब वो आप कम से कम अपना सिफारती और जो माशी दबाव है वो तो इस्तेमाल करें, ताकि इसराइल को इस जाहिरियत की, इंसान की नस्ल कुशी की एक कीमत अदा करनी पड़े। तो जाहिद साहब, ये जो मैंने सिक्योरिटी की बात की कि दोनों ममालिक का जो है मुश्तरक है, और ईरान को तो पाकिस्तान पर ये उस वक्त ज़्यादा एतमाद हुआ और ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुकात बढ़े जब जो ईरान में शिद्दत पसंद ग्रुप था जंदुल्ला और उसका जो सरबराह था अब्दुल मालिकी रेगी, उसको इंटेलिजेंस शेयरिंग पे पाकिस्तान ने मालूमात फराहम की थी। और इस तरह की जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, ये सिक्योरिटी के जो बॉर्डर के हमारे मसाइल हैं, क्योंकि जिस तरह बताया कि ईरान अफगानिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहा है, ये जो आपस का ताउन है, ये सिक्योरिटी को सिक्योरिटी चैलेंज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त? देखिए शाजिया, हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें जो रियलिटीज़ हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान ने हमेशा, देखे हम विक्टिम हैं टेररिज्म का, हमें दर्द महसूस होता है, हमें पता है कि अगर ईरान के बीच में टेररिस्ट इस तरह ऑपरेट करेंगे, या ये जो ग्रुप्स हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जब ये करेंगे तो ईरानियन अवाम को भी और ईरान की हुकूमत को भी तकलीफ होगी। लेकिन दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। अमरीकी सदारती इंतखाबात, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, कौन करेगा अमरीका पर राज? पोलिंग का अमल मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी, कई रियासतों से नताइज मौसूल। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 246, जबकि कमला हैरिस के वोटों की तादाद 210 है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के वाज़ेह इम्कानात हैं, अमरीकी मीडिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म नीला गैज़र में सैलाब से तबाह मकानों की जगह मुतासरीन के लिए खुसूसी तामीर शुदा नए घरों का इफ्तिताह करेंगे। गिलगित में नलतर एक्सप्रेस वे, ग्रेटर वाटर सप्लाई हुंजा और अताबाद 54 मेगावाट बिजली घर समेत मुतादिद तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद इफ्तिताह भी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू, 9th एवेन्यू इंटरसेक्शन और सेरीना चौक कन्वेंशन सेंटर इंटरसेक्शन का संग बुनियाद रख दिया। सेरीना चौक 60 और 9th एवेन्यू मनसूबा 100 दिन की इंतहाई कलील मुद्दत में मुकम्मल होगा। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग, दोनों मनसूबे इस्लामाबाद और गिरदोनवाह की खूबसूरती और तरक्की का बाइस बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, पॉलिसी रेट में मजीद कमी, पायदार माशी इस्तेहकाम की जानिब बेहतर अंदाज में बढ़ रहे हैं।
तरसीलात ज़र में इजाफा और रुपया मुस्तहकम हुआ है। मुस्बत माशी इशारे हुकूमत की मौसर पॉलिसियों के समरात हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब। हुकूमत की मुस्बत माशी पॉलिसियों के समरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मार्केट इस वक्त 92,848 पर ट्रेड कर रही है। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ कश्मीरी आज यौम शोहदा मना रहे हैं। 1947 में आज के दिन डोगरा फौज ने मुनज़्ज़म अंदाज से कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कुशी शुरू की। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले कत्लेआम में 2,37,000 कश्मीरी मुसलमान मुनज़्ज़म तौर पर शहीद किए गए। मकबूजा कश्मीर के अवाम भारतीय जुल्म सितम का बहादुर इस्तेकामत से मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीरी भाइयों को इस जद्दोजहद में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब श्रीनगर में सब्ज़ हिलाली परचम लहराएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का यौम शोहदा जम्मू कश्मीर के मौके पर खुसूसी पैगाम। SIFC की सहूलतकारी से तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त। मुल्की वसाइल पर इन्हिसार के जरिए मईशत का इस्तेहकाम तरजीहात का हिस्सा। OGDCL की सिंध के जिला खैरपुर में कुदरती गैस के ज़खायर की दरियाफ्त। 10 मिलियन मकाब फुट यौमिया गैस की पैदावार होगी। जिला सांगड़ में दरियाफ्त ज़खायर से तेल और गैस की पैदावार भी शुरू। यौमिया 350 बैरल तेल और 50 तक मकाब फुट गैस की फराहमी। मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान हज़ारों मैट्रिक टन मनशियात जब्त। सैकड़ों मनशियात फरोश गिरफ्तार। मुल्क का मनशियात से पाक करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरज़्म। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। 54 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। कमाल उद्वान अस्पताल का मुहासिरा। सेहूनी फौजी कार्रवाई में डॉक्टर्स और शीरख्वार बच्चों समेत मुतअद्दिद मरीज जख्मी। मगरबी किनारे पर हमले में 2 अफराद शहीद। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में रिहायशी इमारतों पर भी बमबारी। 20 अफराद जहां बहक, मुतअद्दिद जख्मी। और दोहा में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ आज फाइनल में ईरान के अली गरागोजलो के मद्दे मुकाबिल होंगे। सेमीफाइनल में मोहम्मद आसिफ ने कब्रिज के माइकल जॉर्जियो को शिकस्त दी। These challenging times, the importance of exports cannot be overstated. I am pleased to see that Nestle Pakistan has already successfully increased exports to 26 countries. Given the scale of Nestle worldwide operations, I anticipate that the goals you have set will directly contribute to our efforts to shore up foreign reserves, playing a key role in the government's plans to put Pakistan back on track for economic recovery. Nestle's success is a testament to the resilience and ingenuity of our private sector, which forms the backbone of economic prosperity. Your accomplishments underscore the critical role that business play in driving our nation's economic engine growth. I encourage you to continue your commitment to quality and excellence, as it not only benefits our company but also contributes significantly to the overall well-being of our nation. It is a moment of pride for me to know that the sum of our favorite local or iconic brands such as Everyday, Fruta, Vitals, Milk Pack, Cream and many others are reaching global consumers. Not many may know that Pakistan was the first market that launched Nestle Pure Life, the iconic water brand which is now present in many other countries.
This is yet another example of how something produced in Pakistan can create a global brand quality. Nestle Pakistan is already among the top packaged food exporters in this new reality. Earning foreign exchange is crucial, not just for Nestle Pakistan, but also for Pakistan's economy. No more than ever, we need to establish Pakistan as a key export hub. And one thing I, just to bring in the knowledge of people sitting here, when I was Minister of Science and Technology, I had a meeting with Nestle administration and chief executive that you produce water in small bottle, small size. And they designed that bottle, and naturally I approved that, I liked that design, and they started producing water in that bottle, small bottle. And that size of bottle becomes so popular. After a few months, that size of bottle was not available in market. And I wrote a letter to all government ministries and organizations and departments, including Prime Minister Office and for President House, that in future you must use this bottle, because generally I have seen during the meetings, official meetings, most of the water will go waste. So you introduce this size of Nestle bottle, and that size become very popular. And after that, many companies started packing water in small bottles. I have seen other companies also. So this is, I am proud of this, that I have suggested this. And one, I have also a relationship with this company, that their major plant is located in my constituency, also in Sheikhupura. And I am proud of this, that this is this company is producing high quality food, packed food, and also known as Mr. Hassan mentioning, that you just go to the market and ask for a water, just say, I want Nestle, they just give you a bottle of water. So originally Nestle is known because of quality of water they are producing. So congratulations, see you and your team, and I hope definitely you will progress and contribute to the economy of Pakistan, and also contribute to the foreign exchange reserves in future. And by 2023 you will fulfill your promise, and you will definitely honor my word that this target, $100 million, should be achieved in 2023. And once again, congratulate you launching Vision 2030 program and planning 2030 for Nestle Pakistan. Thank you all for being here and sharing Pakistan's success story through Nestle. Thank you very much. वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते खुल चुके हैं। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हुकूमत निजी शोबे को तमाम सहूलियात फराहम करेगी। निजी शोबे का मुल्की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार है। ये थी अब तक की PTV ताज़ा तरीन। हर वक्त बर वक्त
अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त का हमारा एक बहुत बड़ा और सुलगता हुआ मसला, जिसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे इकदाम भी किए जा रहे हैं रियासत की तरफ से भी, और सिक्योरिटी फोर्सेस भी दहशत गर्दी से निमटने के लिए जो कुर्बानियाँ दे रही हैं और जो लाएहामल बनाया जा रहा है ताकि इस अफरीद को पाकिस्तान से ख़त्म किया जा सके। उसी अफरीद के हवाले से हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात करने जा रहे हैं। ख़बर हमारे पास ये है कि डेरा इस्माइल खान में FC के काफ़िले पर दहशत गर्दों ने हमला किया है और इस हमले में एक FC अहलकार शहीद और 5 ज़ख्मी हो गए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने FC के काफ़िले पर खारजी दहशतगर्दी के इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और उन्होंने FC के जो अहलकार हैं उनको खराज तहसीन भी पेश किया है। जो शहीद हुए हैं अहलकार, उनकी के लिए दुआ की है। ओवरऑल हम ये चाहते हैं कि स्ट्रैटेजी के हवाले से बात करें। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में बार बार हमें यही मामलात नज़र आ रहे हैं और इसको रोकने के लिए सूबाई हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी है, क्या वो ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत पूरी कर रही है या फिर उसमें वो हमें नाकाम नज़र आ रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और इस वक्त जो इक़दाम किए जा रहे हैं क्या उससे इनकी रोकथाम हो पाएगी या हमें इससे मज़ीद आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा, इसी हवाले से बात करेंगे। और मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, शनीला अमार साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल और ऑन शिराजी प्रोग्राम का हिस्सा है। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। इस मसले पर हम बार बार बात करते हैं और दहशतगर्दी का जो अफरीत है इस वक्त हमें जिस तरह से नज़र आ रहा है, बलूचिस्तान में हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर और मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो उसमें हमें सूबाई हुकूमत का कोई इंटरेस्ट नज़र ही नहीं आ रहा कि किस तरह से इन वाक़यात को रोकना है, इसके हवाले से इक़दाम करने हैं। उनका इंटरेस्ट कहीं और इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। लेकिन जो एक पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह से दहशतगर्दी के ये हमले हो रहे हैं, इसके हवाले से मैं चाहूँगी कि आप हमें बताइएगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान शहीद हो रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं क्या वो काफ़ी हैं, ये इसमें कुछ तब्दीली हमें लाना होगी। शुक्रिया नाहिद। देखिए, बलूचिस्तान का मसला तो हमारे सामने है और वहाँ की हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस और वफाक से मिलकर वहाँ की दहशतगर्दी और बदअमनी से निमटने के लिए हिकमत अमली वज़ा कर रही है। और कल भी हम आपके प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि आर्मी और FC को नई जिम्मेदारियाँ वहाँ पे तफवीज़ होनी जा रही है। सरफराज बुगटी साहब मुसलसल वज़ीर आज़म साहब के साथ राब्ते में है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ राब्ते में है और वहाँ के अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से वो दिन रात हमें मसरूफ़ नज़र आते हैं। वहाँ BLA, BRF, BNA और इस किस्म की बाकी जो तंजीमें हैं वहाँ पे दहशतगर्दी की नोयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आलमी सतह पे भी गवादर और CPEC के जो प्रोजेक्ट है वो निशाने पे हैं। वहाँ पे प्रॉक्सी वार भी खेली जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो वहाँ के मामलात भी ज़्यादा मुस्तहकम नहीं है। लेकिन फिर भी हमें वहाँ पे कोई सूबाई हुकूमत की दिलचस्पी भी नज़र आ रही है, उनके एफ़र्ट्स भी हम देख रहे हैं और अल्लाह ताला करे कि वफाक और सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से बलूचिस्तान में अमन कायम हो। अब आते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। पख्तूनख्वा का मसला बिल्कुल अलग है। वहाँ पे रिवायती दहशतगर्दी है। वहाँ पे देखिए जो 9/11 के बाद दहशतगर्दी का एक लहर है, उसी का एक तसलसल है। सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविल और मिलिट्री दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। वो बिल्कुल एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह इन दहशतगर्दों के सामने वो मौजूद है और यही वजह है कि कभी हम रोज़ डिस्कस कर रहे होते हैं कि वहाँ पे या तो पुलिस की शहादत हो रही होती है या फिर FC की या फिर आर्मी की वहाँ पे शहादतें होती है। और शहादतें भी लोअर लेवल से लेकर आला अफसरान तक, यानी मैदान अमल में और जो खवारिज के ख़िलाफ़, फितनत और खवारिज के ख़िलाफ़ जो सिक्योरिटी फोर्सेस की एक जदोजहद है, क़यादत से लेकर जो फुट सोल्जर है वहाँ तक एक विल हमें नज़र आ रही है। वरना अगर ये सिक्योरिटी फोर्सेस की ये विल ना होती तो सूबाई हुकूमत की जो हालत है और जो दिलचस्पी का आलम है, उसके नतीजे में मेरे मुँह में खाक, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त राज किसी और का होता। अब भी जनूबी अजला में, जो बार बार मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि ये जो जुल्फ़ी वाली सरकार है, हमारे वज़ीर आला साहब जितना अडियाला के यात्रा करते हैं, अगर इससे आदो आद भी ये अपने इलाके डेरा इस्माइल खान जाए तो शायद आज हम ये अफसोसनाक खबर आपके साथ डिस्कस ना कर रहे होते। उनकी तवज्जो, उनकी दिलचस्पी जो है वो सिर्फ अडियाला
या फिर बनीगाला की जो एक साबिक मकीन है आजकल उनकी मेहमान बनी हुई है, उनकी खातिर मदारत में है, बाकी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये लोग उनके मेहमान रहे हैं नाहिद, ये लोग माजी करीब में इनके मेहमान रहे, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये बिल्कुल इनके साथ इनका पूरा एक इकट्ठ है, पूरा एक गठजोड़ है तो गलत नहीं होगा। बत्ते ये लोग उनको दे रहे हैं, स्पेस ये लोग उनको दे रहे हैं। माजी करीब में हमने देखा था कि इन्हीं का एक मरहूमियत एक हमारे इस्टेब्लिशमेंट के एक अहम अफसर थे जो इस वक्त इंक्वायरी के अमल से गुजर रहे हैं, कोर्ट मार्शल के अमल से गुजर रहे हैं, उन्हीं की कहने पे और उन्हीं की आशीर्वाद पे ये लोग खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ला के आबाद किए गए हैं। और उसकी कीमत कौन अदा कर रहे हैं? आम लोग या सिक्योरिटी फोर्सेस। अब भी इनको ये कोई होश नहीं है। सीएम साहब को बस यही पड़ी है कि वो या तो इस्लामाबाद पे अलगाल करे और फिर उल्टे पाँव वो भागते बनते हैं और 12 अजलात से होते हुए खैबर पख्तूनख्वा पहुंचते हैं, या फिर आके यहाँ पूछते हैं कि आप अडियाला में आके उनके जो उनकी लीडर कैद है उनसे पूछते हैं कि आपको कितनी जो है ज़रूरत है, देसी मुर्गों की कितनी ज़रूरत है, आपके खाने पीने का क्या इंतज़ाम है। ये वही एक बावर्ची की किरदार ये यहाँ पे भी अदा कर रहे हैं। और अभी वहाँ पे जाके सीएम हाउस में भी एक जो हमारी मुहतरमा है, जिनके बाद इसलिए मैं नाम नहीं लेता कि पीटीआई वाले नाराज़ होते कि उस खातून का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सूबे के हालत जानने वाले बताते हैं कि इस वक्त सूबे की जो इंतज़ामी सूरत हाल है मुकम्मल तौर पर उस खातून के कब्जे में है। तो आपका जो सवाल है कि सूबाई हुकूमत की कोई विल नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियाँ दे रही है और आने वाले दिनों में भी उनका यही हमें एक रद्द-ए-अमल नज़र आ रहा है कि वो किसी सूरत पसपाई इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन खुदारा अली अमीन साहब से हमारी यही दसबस्ता गुजारिश है कि वो सियासत भी कह ले, वो जलसे भी करे, वो अडियाला भी आए, वो एक खातून की मेहमान नवाजी भी करे, लेकिन सूबे पे रहम करे। अगर सूबे पे नहीं करते तो अपने शहर पे, डेरा इस्माइल खान पे रहम करे, अपने डिवीजन पे रहम करे। तो आपकी इस बात से मुझे इत्तेफाक है कि सूबाई हुकूमत की कोई विल भी नहीं है, कोई दिलचस्पी भी नहीं, उनकी दिलचस्पी है किसी और कुछ और मामलात में है। और दहशतगर्दी जैसा जो मामला है, इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा फ्रीज जिसमें बड़ी मुश्किल से हम निपटे थे और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत कुर्बानियाँ दी थी, उसके बाद कहीं जाके हमने इसे जान छुड़वाई थी, एक मरतबा फिर हमें जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये मामलात बहुत ज़्यादा सर उठा रहे हैं और बहुत अरसे से हम इस पर ये बात कर रहे हैं कि मुसलसल कई साल तक वहाँ पर हुकूमत करने के बावजूद सूबाई हुकूमत इस मामले में संजीदा नज़र नहीं आती है। वो दहशतगर्दी ना तो रोकना शायद चाहती है और ना ही वो रोक पा रही है, क्योंकि उनके जो मसाइल हैं वो कुछ और हैं, उनकी दिलचस्पियाँ कहीं और हैं। एक तरफ तो दहशतगर्दी में हालात इतने हमें ख़राब नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने अभी ऐलान किया कि 9 तारीख को वो 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर जलसे का ऐलान कर रहे हैं। पहले उन्होंने पेशावर में 8 तारीख को ऐलान किया था, अब वो 9 तारीख को वहाँ पे गठजोड़ होगा, हम सब इकट्ठे होंगे, अगला लाहे अमल बताएंगे। मुसलसल एहतजाजी सियासत हमें नज़र आ रही है और जो काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। अवाम के मसाइल को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। सूबे की हालत इंतहाई दगरगू है, वहाँ पर जो मसाइल हैं, जो हालात हैं, उसको मुसलसल नज़रअंदाज करके अब हमें ये नज़र आ रहा है कि बड़ी दिलचस्प खबर है कि कारकर्दगी तो आपकी सिफर है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। मतलब क्या आप काम कर रहे हैं, कारकर्दगी आप कुछ दिखा नहीं रहे हैं, काबीना को बहुत ज़रूरत है, उनकी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। और जो करप्शन का बाज़ार वहाँ गर्म है, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी खबरें आती रही हैं। अंदरूनी तौर पर ये जिस तरह से एक छीना झपटी और मुसलसल मसाइल का शिकार हैं, जो तकसीम हमें नज़र आ रही है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसी हवाले से हम चाहेंगे कि प्रोग्राम में बात करें और ये धरने और एहतजाजी सियासत, इसका अंजाम क्या होगा, जो लोगों के असल मसाइल हैं, जब आप उनको नज़रअंदाज करेंगे तो क्या अवाम आपके साथ बाहर निकलेगी? इसी पर हम बात करेंगे। शहनीला, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जो ये एहतजाजी सियासत हो रही है, इस पर भी ऑब्वियसली कि 9 तारीख को उन्होंने ऐलान किया है कि सवाबी इंटरचेंज पर जलसा हो, कोई तवज्जो नहीं है।
बात ये है कि नाहिद, ये जो जलसों का ऐलान किया जाता है और एहतजाज का ऐलान किया जाता है ना, वो किया ही इसीलिए जाता है कि सूबे के अंदर जो हालात खराब हो चुके हैं, जो करप्शन के स्कैंडल्स इनके सामने आ रहे हैं, उसकी से तवज्जो लोगों की हटी रहे। ये मीडिया को, सोशल मीडिया को, अपनी जो सपोर्टर हैं उनको इंगेज रखें इन्हीं एक्टिविटीज के अंदर, ताकि वो उनसे सवाल ना कर सकें। 27,000 प्राइमरी स्कूल के टीचर्स ने ताले लगा दिए स्कूलों को, और उस वक्त वो रोड पे बैठे हुए और पेशावर की तरफ मार्च कर रहे हैं। लेकिन जो वजीर आला है वो 9 मई को सवाबी के अंदर लोगों का इज्तिमा इकट्ठा करना चाह रहा है। उसके बाद आपके जो हेल्थ कार्ड है उसके अंदर करोड़ों रुपए के घपले हुए हैं। यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जमीनें बेची जा रही हैं, तनख्वाहें देने के इनके पास पैसे नहीं हैं हर जी। और ये तवानाई का हाल ये है कि इन्होंने कहा था कि जी हमने यहाँ पे 350 डैम बनाने, हम बिजली अपनी बनाएंगे, और इनका सूबा सबसे ज्यादा डिफॉल्ट है। जो पैसे आप अपने जो पार्लियामेंटेरियंस है जो कर कुछ नहीं रहे हैं, जहां से रोज स्कैंडल्स आ रहे थे, उनकी जो तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं उससे आवाम को मराद बढ़ा रहे हैं। रेंट उनका बढ़ा दिया गया, उनको घर की रेनोवेशन के लिए 10-10 लाख रुपए एक को दिया जाएगा। अगर किसी के पास अपना घर है भी तो फिर भी उसको रेंट के 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी कि एक लूट सेल जो है ना वहां पे मचाई हुई है। तो वो अवाम को कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं, गुर्बत वहां पे बढ़ती जा रही है। फिर इसी वजह से वहां पे ये जो अगवा बराए तावान के जो है मसले सर उठाते हैं, क्योंकि जराइम वहां पे बढ़ रहे हैं। जब गुर्बत होगी, अवाम को रोजगार नहीं मिल रहा होगा, तो फिर उन्होंने इन जराइम एक्टिविटीज में ही जाना ना, अपने घरों को चलाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। और एक बात ये कि जब हम लोग बात करते हैं ना कि कंटिन्यूटी नहीं होती, कोई पॉलिसीज नहीं होती, जो हुकूमतों की लेग पुलिंग हो जाती है, हुकूमतें खत्म हो जाती हैं, इस वजह से मामला जो खराब होते हैं। इनको 11 साल हो चुके हैं एक सूबे में। ऐसे ही है। जब आप 11 साल किसी एक सूबे में हो, जो सूबे की पूरी तारीख बदल जानी चाहिए, वो पूरा सूबा जो है बदल जाना चाहिए। लेकिन उस सूबे के हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। जो यूनिवर्सिटियां या स्कूल जो बने थे ANP के दौर में, वो बंद होना शुरू हो चुके हैं। बजाय इसके कि आपका लिटरेसी रेट ऊपर जाता है, वो नीचे जा रहा है। पुलिस इस्लाहात का बड़ा नारा लगाया गया, लेकिन पुलिस के वहां पे क्या हालात है कि दहशतगर्दी की जब कार्रवाई होती है, दहशतगर्दों से फ्रंट लाइन पे पुलिस होती है, उनके पास निपटने के लिए असला नहीं है वहां पे, तो वो फिर वो पीछे हट जाते हैं। इसी वजह से डेरा इस्माइल खान हो गया, ये बन्नू हो गया, वहां पे रात को तालिबान का वहां पे कब्जा हो जाता है, क्योंकि पुलिस के पास हथियार ही नहीं उनका मुकाबला करने के लिए। इस जो हुकूमत है इस KPK में, उसकी विल ही नहीं है अवाम को ठीक करना, उनके मसले ठीक करना। वहां पे जाके गैर सियासी खातून भी बैठ गई हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि गैर सियासी खातून है। मुबैना तौर पे कहा यह जा रहा है कि जो पहले ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे जो अली अमीन गंडापुर के भाई लेते थे ना, अब वो मोहतरमा ले रही हैं, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मामलात वहां पे अब वो संभाल ले, क्योंकि उन्होंने वहां पे एक फरागोगी रखी हुई थी पंजाब के अंदर जब इनकी हुकूमत थी। अब उन्होंने वहां पे भी एक फरागोगी ढूंढ ली है, जिनके जरिए वो मामला चला रही है और पोस्टिंग ट्रांसफर करवा के वहां पे अपने कमीशन जो है वो सारे कुछ अली अमीन गोगा के साथ तो ताल्लुकात इस बुनियाद पे खराब हो रहे हैं ना, वो एक और उन्होंने ढूंढ लिया फराग गोगी। तो ये इनका ये सूबे के अंदर हाल है। लेकिन करना क्या है, हमने एहतजाज करना है, हमने वफाक पे हमला करना है, हम कफन सर पे बांध के आ रहे हैं, अब हमारे जनाजे पढ़ लीजिएगा। ओ भाई, वहां पे जो आवाम बैठी हुई है, भूखी मर रही है, पहले उसका तो कुछ इलाज कर लो, उनको तो कोई सहूलत फराम कर लो, उसके बाद वफाक के पास आना अपने हुकूक मांगने के लिए। वो जो हुकूक मांग रहे हैं वहां पे, उनको तो हुकूक दे दो पहले। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी पे बात कर लेते हैं। ये जो मिरात में इजाफा किया गया है, काबीना के हर मेंबर को सरकारी घर ना मिलने पर 2 लाख रुपए किराया जो है किराए की मद में दिए जाएंगे, और इस जो तरमीम की है बिल में उसके मुताबिक पेशावर में ज़ाती घर वाले वजीरों को भी 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, चाहे आपका ज़ाती घर है। और फिर रिहाइश गाहों की तज़ीन और आराइश के लिए एक बार 10 लाख रुपए मिलेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें वो नज़र आ रही हैं। मतलब इसी पे ख़त्म हो जाता है, अवाम का कोई मसला नहीं है। अवाम के लिए जो मसाइल हैं, उनके जानो माल की हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है, उनकी ज़िंदगी वो अच्छे अंदाज से गुजार सकें वो आपकी ज़िम्मेदारी है। वहाँ पर आपकी कोई तवज्जो नहीं है। जब आपने एहतजाज करना होता है, जलसे करना होता है, आप लोगों को लेकर बाहर निकल आते हैं, लेकिन फिर आप खुद गायब हो जाते हैं। ये तो सब जानते हैं और ये 12 हो चुका है, कोई एक मरतबा ऐसा नहीं हुआ है। शुक्रिया नाहिद। देखें, ये जो अब इस आपने सवाल किया कि आवाम की कोई उनको फ़िक्र नहीं है, तो आवाम की फ़िक्र होती तो कुछ और कर रहे होते। वो जिक्र करते हैं कि वो क्या कर रहे होते, लेकिन आवाम ने उन्हें जवाब दे दिया है इसका। ये अभी वहाँ ज़िमनी इलेक्शन हुआ है बल्दियात का, और उसमें इनका सफाया हो गया। तो ये बात, ये नविश्ता दीवार है जो सामने लिखा हुआ है, ये मुमकिन है ना पढ़ा हो, या पढ़ लिया हो तो आंखें फेर ली हो, अंदाज़ा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी गैर मामूली हैं। मसलन अभी जिक्र हुआ वहाँ बदअमनी का,
है ना, दहशतगर्दी का, भत्ताखोरी, और इतलात ये थी कि खुद इनके मिनिस्टर्स देते रहे हैं भत्ताखोरी। ऐसे ही बिल्कुल। हाँ। बच्चों का अगवा, जो ताज़ा वाक़यात हैं वो बच्चों के अगवा के हैं, ठीक है। और सरकारी तनसीबात पर हुकूमत की ज़ेर निगरानी हमले होते हैं, जो वापडा की तनसीबात हैं उन पर ख़ुद यानी उनके वज़रा और उनके अरकान असम्बली वो लीड करते हैं मॉब को और वहाँ जाके तोड़ फोड़ मचाते हैं। तो ये है सूरत हाल। अमलन वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में आपको हुकूमत दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, दिखाई नहीं दे रही तो फिर हमारे सामने चंद सवालात हैं क्या, और ये आइनी किस्म के सवालात हैं, और यकीनन ये अब आइंदा चंद रोज़ में इनके जवाबात देने ज़रूरी हो जाएंगे। एक ऐसी हुकूमत जो अपने फ़राइज़ मनसबी अदा न करती हो, क्या फ़राइज़ मनसबी? आवाम को सहूलत फराहम करना, बच्चों को तालीम फराहम करना, सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा को उनकी ज़रूरियात देना जो वो हड़ताल करके बैठे हुए हैं। अच्छा, जो सरकारी वसाइल के साथ वफाकी दारुल हुकूमत पर बार बार हमला आवर हो जाए, ये एक बगावत की सूरत है। आप ज़रा मुगलिया दौर पढ़ें, उस दौर में क्या होता था, अगर जो सूबेदार बागी हो जाता था तो वो क्या करता था, वो दिल्ली पे चढ़ाई करता था, वो इधर उधर से कुमक मांगता था और दिल्ली पे जाके हमला आवर हो जाता था। और अब ये तो कुमक कहीं और से भी मांग रहे हैं। आपको याद है ना वो जिरगा जिसमें वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ लोग बिल्डअप कर रहे थे और ये उसमें जाना चाह रहे थे, तो इनका भी तर्ज अमल वो है। अच्छा, पूरे मुल्क को बंद करने की जो धमकी दे कि जी हम पूरे मुल्क को नहीं चलने देंगे, बंद कर देंगे, फिर ये कहे कत्लो गारतगरी की धमकी दे और ये कहे हम आए ना आए, जनाजे पढ़ लिए जाएं। याद है आपको 2014 में जब ये कफन ओढ़ के आ गए थे और इन्होंने कब्रें खोदी थी, ये वो तर्ज अमल है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है कि अगर कोई सूबाई हुकूमत इस तरह का तर्ज अमल इख्तियार करे तो क्या उसको हुकूमत पे रहने का हक है? ये ज़रूर सवाल एक रेफरेंस की सूरत में जाना चाहिए। अब तो आज कोर्ट भी बन गई, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बन गई, उसमें कि पहला सवाल ये जाना चाहिए कि अगर कोई सूबाई हुकूमत ऐसा काम करती है तो उसका यानी कोई अखलाकी जवाज़ बाकी रह जाता है, क्या आईनी और कानूनी जवाज़ है या नहीं। एक तरफ ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ ये है कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर लूट मार का बाजार गर्म है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आतिफ खान वज़ीर आला पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वज़ीर आला इन पे इल्ज़ामात लगाते हैं, और उनको जो इदारे हैं करप्शन की तहकीकात करने वाले वो उनको तलब करते हैं। तो ये है एक सूबे की सूरत हाल। ये तो इसको कहते हैं तवाइफुल मुलूकी। ये हुकूमत नहीं है, ये अफरा तफरी है। इस अफरा तफरी में क्या होगा? यानी एक तो ये होगा ना कि सूबा डिस्टर्ब हो जाएगा, सूबा अनमैनेज हो जाएगा, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे मुल्क के दीगर हिस्सों की तरफ। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इससे निमटने के लिए सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि आइन से रहनुमाई ली जाए कि ऐसी हुकूमत के बारे में आइन की हुक्म क्या है, और फिर उस हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। ठीक है। और साहब आपकी इस पे क्या राय है? जो ओवरऑल इस वक्त हमें हालात नज़र आ रहे हैं, जिन चीज़ों की तरफ मैंने इशारा किया, मुराद में इजाफा किया जा रहा है, भत्ताखोरी वहाँ पर नज़र आ रही है, बच्चों को अगवा किया जा रहा है, अगवा बराए तावान, और दहशतगर्दी बहुत बड़ा मसला, अवामी मसाइल जो हैं मुसलसल नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, लोग शाम को घरों से बाहर निकल नहीं सकते हैं। किसकी जिम्मेदारी है? कौन करेगा ये काम? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर जो हालिया इन्होंने एक अपनी मरात में इजाफा किया है, एक तरफ ये मेरिट की बात करते हैं और सोशल मीडिया पे जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं वो यही करते हैं कि जी आवाम का पैसा जो है वो आवाम पे लगना चाहिए, और हम टैक्स पेयर हैं और हम ये पैसा देते हैं, तो ये क्यों नहीं आवाम पे लग रहा। तो मरकज़ में अगर आज की ही बात करें, अभी जब मैं आ रहा था आपके स्टूडियो में तो उसी वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो मुख्तलिफ संग बुनियाद रख रहे थे प्रोजेक्ट्स के इस्लामाबाद में, और इसी अंदाज में अगर आप गवादर से लेके और कश्मीर तक देखें तो मुख्तलिफ जगहों पे वफाकी हुकूमत जो है वो प्रोजेक्ट कर रही है। सिंध हुकूमत अपने तौर पे कर रही है, पंजाब हुकूमत अपने तौर पे कर रही है, और बलोचिस्तान हुकूमत अपने तौर पे कर रही है। एक वाहिद सूबा है अगर हम देखें जो इसमें मिसफिट हो रहा है। अब इसमें सूबे की आवाम का कसूर नहीं है,
इसमें क्या चीज़ है वो भी अगर हम इलेक्शन की बात करेंगे और यहाँ पे किस अंदाज में केपी में इलेक्शन हुआ और उसकी एक पूरी तफसील है जो इनके अभी जिनसे ये मुलाकात कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान, वो ये कहते हैं कि केपी में बहुत बड़ी धांधली हुई, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अब क्योंकि ये लोग बैठे हैं तो इनकी सबसे पहले जिम्मेदारी क्या बनती है? इनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि ये अवाम के लिए कुछ करें। इनके जो बानी चेयरमैन थे वो किसी दौर में ये कहते थे कि हज़रत उमर ने का कौल था कि अगर फुरात के किनारे एक जो है वो कुत्ता भी प्यासा मरा तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ, मैं हुक्मरान हूँ। तो अब अगर यहाँ पे अगर देखा जाए इस जगह पे केपी में, तो यहाँ पे जो हुक्मरान है उनके अपने ही है ना, उनकी पार्टी है। तो वो पार्टी इस वक्त कर क्या रही है? वो पार्टी ये कर रही है कि वो जी जाती है और वो जाके पूछती है कि मुर्गे मुसल्लम जो आपने खाया था वो मज़ेदार था, उससे बेहतर हम आपको खाना देते हैं। अब मेरे लिए जो हैरान कुन बात थी, ये जो अभी अडियाला जेल के सामने मीडिया टॉक कर रहे थे अली अमीन गंडापुर, और जब एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि आप तो सरकारी वसाइल के साथ वफाक पे हमलावर हुए, सरकारी गाड़ियां आपके पास थी,